Yes. See the next term, receipt. P साइलेंट रहता है आमतौर पे प्रोनाउंसिएशन में, रिसिप्ट भी बोल दोगे तो भी ठीक है, बट बेटर टू कॉल इट रिसीट। जब आपने स्कूल की फीस जमा करवाई तो आपको एक रसीद मिली, वो भी रिसीट है। लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या? इनकमिंग ऑफ कैश, इनकमिंग ऑफ कैश, जो कुछ बिजनेस को कैश में मिलेगा या कैश में मिलने का प्रॉमिस मिल जाएगा तो उसे हम रिसीट कहते हैं। तो बिजनेस की सारी इनकम्स व्हाटएवर आई एम रिसीविंग इन कैश, दैट इज बीइंग कॉल्ड व्हाट? रिसीट। देयर इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इट। रिसीट इज अमाउंट, यस, व्हाट है? रिसीट इज एन अमाउंट बीइंग रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल मैंने अभी आपको बता दिया। रिसीट का मतलब क्या है? जो मिल गया। रिसीवेबल का मतलब है जो मिलने वाला है। मीन्स मेरे कस्टमर ने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि तो अभी मेरे को 15 दिन का उधार दे दे, 15 दिन के बाद मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या है? रिसीट। When he or she promises me to pay it later, so that amount we call receivable. Accounts में कोई चीज मिल गई वो तो लिखनी है, जो मिलने वाली है वो भी लिखनी है। For selling of assets, आपने अपना कोई पुराना एसेट बेचा, उसके बेचने पे आपको कुछ मिला तो वो आपकी रिसीट है। आपने गुड्स और सर्विसेज बेची, that is your business, you sell your goods and services, and for that if you are receiving or something is receivable, that is being called receipt. उसके बाद very very important topic I am going to pick. Receipts are of two types, right? One is your, this is revenue receipt, another is capital receipt. This is capital receipt. Revenue receipts are those receipts which are related with my normal course of business, and these are the receipts which I will be receiving regularly, and these are recurring in nature. Let me write the word recurring. Recurring means ये बार बार मिलेंगी, recurring in nature. So मैं बच्चों को याद करने के लिए हमेशा बोलती हूँ R from recurring, ठीक है, and R for revenue. तो जो revenue receipts है वो बार बार मिलती है, R याद रखना। Revenue receipts are always recurring in nature, that I will be receiving again and again, और उसमें एक ही है sale of goods and services. बार बार आप अपने बिजनेस का सामान बेचेंगे, बार बार आप अपनी सर्विसेज रेंडर करेंगे अपने क्लाइंट्स को, एंड यू विल बी गेटिंग द फीस एटसेट्रा। सर्विसेज के केस में आपको फीस मिलती है, राइट? Like I am taking the example of a CA, I am taking the example of a lawyer, they give the service and they get the fee, right? So whenever you are selling your goods and services, that is your revenue receipt, क्योंकि वो बार बार होने वाली है। What about the capital receipt? Capital receipt is not regular in nature, it is of non-recurring nature. ये कभी कभार होगी भाई, non-recurring in nature. This will happen not daily basis, this will happen rarely. So what we cover here, when we sell our old asset, जब हम अपने पुराने एसेट कबाड़ के भाव में बेचेंगे, so whatever the scrap value we are getting at the time of its sale, that will be your capital receipt, right? And one thing more, जब आप अपना कोई पुराना प्लॉट ऑफ लैंड बेच रहे हैं तो that is also your capital receipt. जब आप पुराने एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आपको मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। यस, यही लिखा, from the sale of old machinery, building, furniture, investment, etc. So this is your capital receipt. Done? Any doubt about the term receipt? Any amount being received or receivable. Definition में दोनों चीजें लिखनी है, on the sale of goods and services, on the sale of your old assets. So Himanshu raised hand, let me take his query. Okay Himanshu, unmute yourself. Yes. Excuse me मैम, लायबिलिटी मैम जो रिसिप्ट है वो लायबिलिटी के नेक्स्ट का टॉपिक है। दोबारा बोलो, जो रिसीट है वो क्या है? मैम लायबिलिटी के बाद आप ये क्यों आ रही हो रिसिप्ट? I'm not getting liability क्या? I'm not getting. Keep your mic in front of your mouth and then speak. मैम फ्रंट में ही है। हाँ बोलो। मैम लायबिलिटी की नेक्स्ट टॉपिक है ये रिसिप्ट। लायबिलिटी और रिसीट both are different भाई। नहीं मैं नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। Expenditure is not a new term. We in our daily life we use this word. I spent, this was my expense. ठीक है, तो खर्चा बोलते हैं भाई हिंदी और पंजाबी में से। कुछ सामान खरीदने में आपने खर्चा किया होता है, कोई सर्विस लेने में आपने खर्चा किया होता है, लेकिन अकाउंट्स में इसकी कुछ और डेफिनेशन होगी। Or in what sense, in some sophisticated terms, expenditure. This is X, Y.
एक्सपेंडिचर, ठीक है. सो एनी अमाउंट विच इज बीइंग पेड, एनी अमाउंट विच इज बीइंग पेड और स्पेंट, और एनी लायबिलिटी इंकर. वर्ड देखना ध्यान से. एनी अमाउंट, अमाउंट का मतलब पैसा. एनी अमाउंट बीइंग स्पेंट लिख दो, चाहे पेड लिख दो, चाहे बीइंग स्पेंट आपने खर्चा किया, और एनी लायबिलिटी बीइंग इंकर्ड. इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका. Any liability being incurred for acquiring assets, goods or services. For acquiring मतलब purchase, acquiring any asset, goods और सर्विसेज. क्या मतलब है इसका? स्पेंड का मतलब आपने डायरेक्टली पे कर दिया, चाहे पेड वर्ड लिख दो, या आपकी कोई लायबिलिटी इंकर हुई. अब हिमांशु डेफिनेशन दोबारा से लायबिलिटी की यहाँ पे आ जाएगी. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर लायबल टू समवन, व्हेन यू ओ टू समवन. जब आपने किसी से उधार पे सामान खरीदा हो तो आप लायबल रहते हैं उसको पे करने को. तो यही लिखा उसने, एनी लायबिलिटी बीइंग इंकर्ड. काहे पे? जब आपने कोई एसेट खरीदा, मींस आपने वो एसेट उधार पे खरीदा. अकाउंट्स में उधार को क्रेडिट बोला करेंगे भाई, जब आपने उसे क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है. यहाँ आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज उधार मतलब क्रेडिट पे खरीदी, तो लायबिलिटी इंकर हो गई. सो एक्सपेंडिचर इज डजंट मीन हियर ओनली व्हेन यू पे इट. एक्चुअली व्हेन यू प्रॉमिसेस टू पे in the future, then also it is an expenditure. I am repeating, when you pay it actually तो expenditure है ही. And when you acquire the things and you promise to pay in the future, then also it is an expenditure. So expenditure की very good definition he has written, but some sophisticated technical wording he has used here. Any amount being paid लिख दीजिए, चाहे spent लिख दीजिए, ये तो actually cash में pay हो गया. और any liability being incurred, liability कब incur होती है? जब आप ये वाली चीजें उधार पे खरीदते हो. Either you are buying your asset on credit or you are buying your goods and services on credit basis. Then these liabilities gets incurred. Further expenditures are of 3 types. So let me write the meaning of that 3 types on the board. That is revenue expenditure, capital expenditure, and deferred revenue expenditure. So I have 3 types of expenditures with me. That is revenue expenditure. राइट यहीं पे मैं रुकती हूँ. जैसे मैंने रेवेन्यू रिसीट करवाया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लर्न करना है. These expenditures are regular in nature and these expenditures are incurred regularly. These are recurring in nature. R for recurring, R for revenue. Recurring का मतलब ये खर्चे बार बार हम करते हैं. For example, rent paid to landlord, हर महीने पे करेंगे. सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, हर महीने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देंगे. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेगुलरली पे करेंगे. टेलीफोन बिल, मोबाइल रिचार्ज हर महीने करेंगे. तो ये सारे खर्चे बिजनेस में भी होते हैं भाई. एडवर्टाइजमेंट, रेगुलरली यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट. सो दीज आर ऑल व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ दैट आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेगुलरली होते हैं. रेंट, सैलरी. बेटे एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वेजेस. सैलरी और वेजेस, डू यू नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म्स, सैलरीज एंड वेजेस? मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए सैलरी क्या है और वेजेस क्या है. I being a teacher gets salary, ठीक है. जो दिहाड़ी पे मजदूर लगा है वो वेजेस लेता है. So salary is always being paid for the sophisticated jobs for the white collar employees. पढ़े लिखे लोगों को जो पेमेंट होती है वो सैलरी रहती है. प्रोफेशनल्स को जो मिलता है वो सैलरी है. लेकिन जो मैनुअल वर्क करते हैं और डेली उनको पेमेंट होती है, मेरे को मंथली पेमेंट होती है भाई मेरी सैलरी की, और डेली पेमेंट जिनको होती है और वो मैनुअली वर्क करते हैं वो वेजेस कहलाते हैं. ठीक है. सो रेगुलरली यू अपॉइंटेड द लेबर क्लास, आप उन्हें वेजेस पे करते हैं. आप अपने व्हाइट कलर एम्प्लॉइज को, अपने मैनेजर को, अपने क्लर्क को, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को सैलरी पे करते हैं. आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं. दिस ऑल एडवर्टाइजमेंट, एडीवी, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं. वो भी क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है. So revenue expenditures are recurring in nature. These are to be incurred in the normal course of the business. These are to be spent regularly in the business. Whatever definition he is writing in this book, let me read it for you. It is the expenditure incurred, the benefit of which is consumed or exhausted within an accounting period. ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है. ये भी अच्छी डेफिनेशन. राइट आपने 12 महीने का रेंट पे किया,
अगले 12 महीने आप दोबारा से रेंट पे करोगे तभी वो लैंडलॉर्ड आपको बिल्डिंग में रहने देगा. So their benefit get exhausted within a period of 1 year, or these are being incurred regularly. These are of recurring nature, right? Examples वही लिखी है, salaries, rent, electricity expenses, etc. Right? So this is your revenue expenditure. Now come to the capital expenditure. These are of non-recurring nature. ये बार-बार नहीं होते. And the amount spent on it and their benefit will get exhausted within a period of more than 1 year. इसका benefit एक साल में खत्म नहीं होता. For a longer period of time, we can derive the benefit from such type of expenditure, and that are expenditure done on assets. जब आप fixed assets खरीदते हो, जब आप non-current assets खरीदते हो, non-current asset means you are buying your machinery, you are buying your furniture. तो एक साल के बाद दोबारा मशीनरी नहीं खरीदोगे ना, 10, 12, 15 सालों तक वो मशीन चलती रहेगी भाई. ठीक है. So capital expenditures are not being incurred regularly, that are non-recurring in nature, and these are the expenditure which we incur on purchase of our fixed asset, or we call them non-current assets. CA का मतलब non-current asset है. Non तो मैंने लिख दिया, CA means current assets, non-current assets. So what he is saying, it is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing assets. Like मेरी बिल्डिंग का पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना था, अब मैंने खर्चा करके उसका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करवा लिया. तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में मैंने एडिशन करी. ठीक है. वो एडिशन भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. यू आर गेटिंग मी? ठीक है. तो अब कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी है, आपने उसकी मोटर वगैरह चेंज करवा ली, उसकी वर्किंग कैपेसिटी पहले से बढ़ गई, आपने मोटर उसकी नई और सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी की डलवाई, तो दैट इज आल्सो टू बी कवर्ड अंडर व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगेन आई एम रिपीटिंग, amount spent to acquire assets or improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business. अपने पुराने एसेट्स में कुछ नया करवाओ या कुछ चेंजेस करवाओ जिससे अर्निंग कैपेसिटी हमारे बिजनेस की बढ़े. लाइक आपने पेइंग गेस्ट रखे हैं, तो पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही रह रहे थे. पेइंग गेस्ट रखने का आपका बिजनेस है, पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही रह रहे थे, अब आपने फर्स्ट स्टोरी भी बनवा ली, सेकंड स्टोरी भी उसकी बनवा ली, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ गेस्ट नाउ टू बी अकोमोडेटेड विल एनहांस ना. होटल में देख लीजिए, जब बिल्डिंग का एक्सटेंशन होती है तो अर्निंग कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी. यू आर गेटिंग मी? तो इस तरह से अगर एग्जिस्टिंग एसेट में भी कुछ नया एडिशन करवा लेते हो तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनता है. ठीक है. दोनों टाइप्स की एक्सपेंडिचर क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क? Any query, any doubt you may ask? Yes, students, learn this concept with the help of this example. Like we spent 5 crore rupees on the launching of a new project. That is what our seems to be our fictitious asset. लेकिन अब इस 5 करोड़ को कैसे शो करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करना है? So we thought कि 5 सालों तक इस एडवर्टाइजमेंट का मेरे को खर्चे का फायदा मिलता रहेगा. 5 years, I thought. This is my imagination. Similarly, बिजनेस हाउस भी ऐसे इमेजिनरी ही करते हैं, इमेजिनेशन से काम चलाते हैं. 5 करोड़ भी स्पेंट एंड वी थॉट कि 5 सालों तक इसका जरूर बेनिफिट मिलता रहेगा. अगर आने वाले 5 सालों तक तो मेरे को और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन with regard to this lump sum spending on advertisement. So we will be dividing this 5 crore into 5 years. I will be writing of 1 crore in each year. हर साल 1 करोड़ का मैं खर्चा दिखाऊंगा. 1 crore I will be putting to the advertisement. ठीक है. You are spending it once, but you are writing it off in the coming years. That's why we call it deferred revenue expenditure. Deferred का मतलब है इंस्टॉलमेंट्स में. उसकी रिकवरी हम लोग क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट्स में. कहीं ना कहीं ये एक्सपेंडिचर दिखाने होते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे ये राइट ऑफ होता रहेगा, पहले साल ये 5 करोड़ आपका फिक्टिशियस एसेट होगा, अगले साल 1 करोड़ राइट ऑफ हो जाएगा, तो आपका 4 करोड़ फिक्टिशियस एसेट रह जाएगा. अगले साल एक और 1 करोड़ आप राइट ऑफ कर देंगे. ठीक है. तो आपका 3 करोड़ फिक्टिशियस एसेट रहता जाएगा. 5वें साल के एंड में 0 फिक्टिशियस एसेट. तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इन फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है. What he is writing in your book, learn the concept, listen the concept carefully. It is a revenue expenditure in nature. मैंने पहले ही बोल दिया, रेवेन्यू है, लेकिन करते खर्चा एक बार है, फिर इंस्टॉलमेंट्स में इन खर्चों को शो करते हैं. ठीक. in nature but is written off in more than one accounting period. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमेशा एक साल ही मिलता था, लेकिन ये वो खर्चा है रेवेन्यू होने के बावजूद भी हम इसे राइट ऑफ करते हैं इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. जैसे यहाँ पे 5 सालों तक ये चलता रहेगा.
because it is estimated that the benefit of such expenditure will accrue in more than one financial year. क्योंकि हमें लगता है कि deferred revenue का expenditure का फायदा हमें एक साल से ज्यादा सालों तक मिलने वाला है. So we just write it off in more than one accounting year. So that's why we call it deferred revenue expenditure. And you will be quoting the same example, a lump sum amount being spent on the advertisement campaign to launch a new product in the market. Right? So this is all about your deferred revenue expenditure. So today we have discussed receipt. P silent रहता है pronunciation में. Receipt की हम लोगों ने type करी. Only two types are there. One is revenue receipt, another is what? Capital receipt. Then we directly pick this topic, which we call expenditure, amount spent or amount promised to be paid, or the liability accrued with regard of purchase of asset and goods and services. So expenditures are of three types, students. One is revenue expenditure, another is capital expenditure, and third one is written in front of you, that is deferred revenue expenditure. Now, few students have certain queries. Let me read my chat box.